Hello everyone. Today we are going to discuss about anti-anginal drugs. Anti-anginal drug topic that is in your unit 2 in medicinal chemistry second BP 501T as per PCI syllabus. In previous video we have discussed about in detail about etiology of angina pectoris, myocardial infarction, ischemic heart disease, about the physiology part of the heart, blood vessels, capillaries and veins that we have discussed in detail. Now we are discussing about the chemistry of anti-anginal drug. So the anti-anginal drugs are the drugs which are used in treatment of angina pectoris, and angina pectoris is a ischemic heart disease, and ischemic heart disease, and that is mainly due to this ischemic heart disease is results due to adverse atherosclerosis into the arteries. So that is the important things that atherosclerosis, that is here. Look at here the atherosclerosis. Atherosclerosis means depositions of LDL or low dense lipid into the inner wall of artery, and this is characterized by the angina pectoris, in which what happen, the pain in chest that is takes place in angina pectoris, and especially the pain into the left shoulder, that is down to the left arm. As you know, the left side there is heart that is present into the thoracic cavity, and in this thoracic cavity in the below the heart, so you can say the blockage due to the depositions of formation of athorma, deposition of LDL or cholesterol, bad cholesterol, that is depositions of bad cholesterol takes place. That's why the one athorma is formed into the inner wall of coronary artery. That's why the coronary artery lumen diameter get reduced, and this type of disease is called as angina pectoris. So angina pectoris is a ischemic type disease, and we can classify them into the two type: typical or variant angina. And the typical angina, that is called as the classical angina, and this classical angina that is takes place when patient working hard and the energy required more oxygen demand, we can say myocardial oxygen demand get increased. But into the variant angina, what happen, that we have discussed in previous video, that in variant angina what happen, that
volume of lumen diameter of coronary artery get reduced. That's why what happen, due to the some types of constrictions into the coronary artery, or this can say muscles of can say into the coronary artery. So what happen, the lumen diameter get reduced by this some types of stimuli. देखिए हम एक बार इसको फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. हमने डिस्कस किया कि एंटी एंजाइनल ड्रग क्या है. एंटी एंजाइनल ड्रग वो ड्रग हैं जो कि एंजाइना पेक्टोरिस के ट्रीटमेंट में यूज होती हैं. एंजाइना पेक्टोरिस क्या है? एंजाइना पेक्टोरिस एक तरीके से इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है. और इस्केमिक हार्ट डिजीज़ जिसमें क्या होता है कि पेन होता है चेस्ट में, और लेफ्ट साइड जो है वो लेफ़्ट साइड में पेन होता है. लेफ़्ट साइड में क्या है? हार्ट. सो हार्ट के अंदर एक तरीके से पेन होगा, क्योंकि हार्ट के आप जानते हैं इसके 4 चैम्बर्स होते हैं. और इन 4 चैम्बर्स में जो वेंट्रिकल पार्ट है, राइट जो है आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. सो द लेफ्ट वेंट्रिकल जो पार्ट है, उस लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है? एक कोरोना को जो अरोटा निकलता है. अरोटा से ही जस्ट एक जो है कोरोनरी आर्टरी जो निकलती है, जो इस हार्ट को जो है ब्लड सप्लाई करती है. और इस कोरोनरी आर्टरी का जो ल्यूमन डायमीटर है उसके अंदर जो है वो VLDL या कहते हैं लिपिड का डिपोजिशन हो जाता है. और इसी से क्या होता है, इसका ल्यूमन डायमीटर जो है क्या हो जाता है? कम हो जाता है. और इस ल्यूमन डायमीटर कम होने से अब देखिए इस ल्यूमन का जो डायमीटर है वो कम हो जाता है, या तो इसमें जो है LDL लो डेंसिटी लिपिड जो है बैड लिपिड जिसको बोलते हैं, ये डिपॉजिट हो जाएगा. तो ये ल्यूमन डायमीटर कम हो जाएगा, जिसमें कि ब्लड जो फ्लो है वो नहीं हो पाएगा, और ऑक्सीजन कंटेनिंग जो ब्लड है वो किसको? हार्ट को मिल नहीं पाएगा. एक जो इसको बोलते हैं क्लासिकल एंजाइना. दूसरा चीज़ क्या है कि ये आपका जो कोरोनरी आर्टरी है ये कोलैप्स हो जाए, और इसमें कोलैप्स होकर के ये इसका ल्यूमन डायमीटर छोटा हो जाए, और ये डायमीटर जो अपने आप इसमें कोई डिपॉजिट नहीं होता है, लेकिन इसका डायमीटर कम हो जाता है. इसको बोलते हैं वेरिएंट एंजाइना या एटिपिकल एंजाइना. तो ये 2 टाइप के एंजाइना हैं, और दोनों में से जो है क्या होता है? पेन होता है, और जो ऑक्सीजन डिमांड है हार्ट को वो कंप्लीटली नहीं हो पाती है. तो ये हमने देखा एंजाइना पेक्टोरिस, और एंजाइना पेक्टोरिस के ट्रीटमेंट में होने वाली ड्रग क्या है? एंटी एंजाइनल ड्रग. अब एंटी एंजाइनल ड्रग का हम क्लासिफिकेशन देखते हैं. वी कैन क्लासीफाई द एंटी एंजाइनल ड्रग इनटू द 4 कैटेगरी. वन इज organic nitrates or nitrites. Means nitrate is NO3 and nitrites is NO2. So they are the nitrates and nitrites. So both the nitrates and nitrites, organic compounds, organic are, you can say organic R represent like RNS2, RNS3, you can say nitrates and organic nitrites may be used in the treatment of angina pectoris. So that we will we will discuss in about this. Another, you can say next class, that is the calcium channel blocker. Calcium channel blocker, you know, the calcium channel blocker, calcium channels are the ions, or you can say calcium channels or channel ions are present into the artery, or especially in the coronary artery. So what happen, these calcium channels responsible for the constrictions of the artery. ये क्या करते हैं, जो आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, कैल्शियम चैनल आयंस हैं जो कि कैस में है, आपके आर्टरी में होता है, और इसको क्या कहते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो वो जो आर्टरी का जो ब्लड है वो आगे की तरफ पंप होगा, ये आगे की तरफ इसको चलना होगा, तो ये प्रेशर से. तो कैल्शियम चैनल जो वर्क है, कैल्शियम आयंस जो है Ca2+2 जो है कैल्शियम आयंस, वो यहाँ पे
बेसिकली यूज होते हैं। और ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, ये कोरोनरी आर्टरी जो है वो कॉन्स्ट्रिक्शंस नहीं कर पाएगी और रिलैक्स रहेगी, जिससे कि ब्लड फ्लो स्मूथली हो सके। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी, दैट इज बीटा एडर्जिक ब्लॉकर ड्रग। बीटा एडर्जिक ब्लॉकर ड्रग मीन्स लाइक एटिनोलोल, प्रोपेनोलोल, दे आर द बीटा ब्लॉकर्स। और ये एटिनोलोल, प्रोपेनोलोल, एटिनोलोल, ये जो ड्रग्स हैं, these drugs are बीटा एनर्जिक ब्लॉकर्स। और बीटा एनर्जिक ब्लॉकर्स क्या करते हैं कि जो बीटा एनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं किसमें, कोरोनरी आर्टरी में, उसको ये जो क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं, वहाँ जाके उसको ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन जो वर्क कर पाते हैं ये कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं कर सकें। और इसी कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण ये क्या है, जो है कॉन्स्ट्रिक्शंस नहीं होने के कारण ये जो है अपना जो ब्लड फ्लो है वो हार्ट में इजीली हो सके। तो ये नेक्स्ट जो है सब मिसलिनियस कोरोनरी वेसोडाइलेटर्स, कोरोनरी डायलेटर्स जो कोरोनरी आर्टरी को डायलेट कर सकें। तो मेनली आप हम लोग सब में देख सकते हैं कि सभी जो है सभी का फंक्शन क्या है, इस कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करना, इसका वो वॉल्यूमन का एरिया को बढ़ाना, चाहे कैल्शियम चैनल हो, जो कैल्शियम चैनल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं उसको ब्लॉक कर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। एडर्जिक रिसेप्टर्स हैं जो कि एडर्जिक रिसेप्टर क्या करते हैं, वो भी इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, और कॉन्स्ट्रिक्शन एडर्जिक ब्लॉकर क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। नाइट्रेट्स क्या करते हैं, वो भी कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। तो ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स जो हैं वो एक तो कार्डियक आउट जो है वर्कलोड कम करेंगी हार्ट में भी। और तीसरा जो है आपका और जो कोरोनरी डायलेटर हैं वो क्या करेंगी, इसको डायलेट करेंगी, तो ब्लड का जो है फ्लो हो पाएगा। So we have discussed about these in details. I hope you get the point. Now we are discussing the one by one in detail. So next we are looking the first, the organic nitrates or nitrites. So as we have discussed that these drugs they are used in the treatment of the ischemic heart disease. Ischemic heart disease they are using. And ischemic heart disease basically you can say angina pectoris is a ischemic heart disease, and myocardial infections MI is also you can say ischemic heart disease. So in what happen in this, that in ischemic heart disease myocardial infections or you can say angina pectoris, in both what happen, that blood supply, the proper blood supply may not take place into the heart, and the myocardial जो say myocardial tissue or can say cardiac muscles will not get the oxygen, sufficient oxygen. So oxygen demand will not be supplied, and that's why what happen, the myocardial workload get increased. मीन्स इसमें क्या हो रहा है कि इस्केमिक हार्ट डिजीज जो माइकार्डियल इन्फेक्शन है, जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं कॉमनली, और हार्ट अटैक में क्या होता है कि हार्ट को जो है प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई या ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, और इसको क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं। और किस जो माइकार्डियल जो इस्केमिक हार्ट डिजीज है उसका एक टाइप है हार्ट अटैक और माइकार्डियल इन्फेक्शन। माइकार्डियल इन्फेक्शंस में जनरली क्या होता है कि आपका कोरोनरी आर्टरी है उसमें अथोरमा जमा हो जाता है या फिर उसमें कोलैप्स होता है, वेरिएंट टाइप का एंजाइना या फिर क्लासिकल टाइप का एंजाइना। और अगर ये जो कोरोनरी आर्टरी कंप्लीटली ब्लॉक हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन कंटेनिंग जो ब्लड है वो हार्ट को सप्लाई नहीं हो पाएगा। हार्ट का जो वर्कलोड है वो बढ़ गया, हार्ट का काम क्या है, पंपिंग करना, तो पंप करने के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन जब प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, मतलब उसके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाएगा और वो पंप उसको करना है, एनर्जी उतनी उसमें है नहीं हार्ट में, तो इसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, जो कि एक तरीके से कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाए तो उसमें क्या होगा, हार्ट डेथ हो जाता है, जिसको बोलते हैं हार्ट अटैक इन जनरल वर्ड। सो यू कैन से इन बोथ केसेस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज द वेसोडाइलेटर्स। हमें वेसोडाइलेटर्स यूज करते हैं। वेसोडाइलेटर का मैकेनिज्म क्या है कि वो उसको वेसोडाइलेट कर देगा, ब्लड की सप्लाई को इंक्रीज कर देगा, और जो
क्या करेगा, एक रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, एक कैपेसिटेंस जो वेसल्स का डेवलप हो गया वो कम हो जाएगा, उसको दोनों को जो क्या करेगा, डायलेट करेगा, जिससे कि जो क्या कहेंगे ब्लड का इजीली कोरोनरी आर्टरी में सप्लाई हो सकेगा. So we are discussing here that various organic nitrates or nitrites, that is the first category, the organic nitrites and nitrates. Well, we are dividing then the active mode of, you can say, duration of action. Short acting agents, that is amyl nitrite, this is the amyl groups and this is NO2 groups. Amyl nitrite means isopropyl, that is the amyl group, isopropyl nitrates. Okay, another, that is, look at here, that nitrates is glyceryl trinitrates, it is called as nitroglycerin, जिसको हम नाइट्रोग्लिसरीन बोलते हैं, glyceryl trinitrates. Nitro group means NO3 nitrate, this is the nitrate NO3. The NO3 3 group is there, and this is the, you can say, a propyl group, you can say glyceryl group, because you know glycerol, what happens, CH2OH, CHOH and CH2OH. Okay, means there where is the nitrogen, where would the OH group would be there into the glycerol. So OH group is replaced by NO2, so that is called as glyceryl trinitrates, or this is called as nitroglycerin. And nitroglycerin, it is given you can say sublingually, and amylonitrate, that is both are, we can say, vasodilators. So that is about the chemistry of nitrates and amylonitrates. Means nitrate, I can say, as well as nitrites. Next we are discussing long acting. These are the, means both short acting, दोनों जो है short acting organic nitrates और nitrites हैं. Nitrite का एग्जाम्पल है amylonitrite, और नाइट्रेट का that is nitroglycerin or glyceryl trinitrate. Now we are discussing the long acting. Long acting, one is erythritol tetranitrate. Erythritol tetranitrate, this is the 4 nitrate group and O3 groups. Pentoerythritol tetranitrate, this is the pentaerythritol group, this is erythritol, so only the 4 nitrate groups, so the pentaerythritol 4 tetranitrate. And another is the isosorbide. Isosorbide is a cyclic group containing, you can say, 2 oxygen ring into the 2 cyclic ring, and oxygen atoms are present there, that is called as isosorbide. Isosorbide dinitrite. So these are what? These are long acting nitrates or nitrites. So basically they all are the nitrates. So important things here, in acute angina, the most frequently treated with the sublingual you can say glyceryl trinitrate, means nitroglycerin, or you can say glyceryl trinitrate, this GTN, glyceryl trinitrate, it is given sublingually. It is important, nitroglycerin always taken sublingually to prevent occurring angina. Long acting organic nitrates preparations are used. To prevent recurring angina, long acting nitrates preparations are using. What do you mean by this?
कि हमें जो ये लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स हैं वो एंजाइना का जो रियकरेंस है वो ना हो, इसके लिए आइसोसार्बाइड डाइनाइट्राइट जनरली, या और बाकी आपका पेंटो इथ्रिटाइल टेट्रानाइट्रेट और इथ्रिटाइल टेट्रानाइट्रेट, ये जो हैं यूज करते हैं लॉन्ग टर्म यूज के लिए, जिससे कि जो रिकरिंग मीन्स दोबारा होना आपका एंजाइना का बार बार अटैक हो, उस केस में रिकरिंग हो, उस केस को रोकने के लिए लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स यूज करते हैं। अदरवाइज नाइट्रोग्लिसरीन जो है शॉर्ट एक्टिंग में, जैसे ही अगर किसी को एंजाइना अटैक हुआ है तो सबलिंगुअली उसको जो है क्या देंगे, नाइट्रोग्लिसरीन और ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। सो शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग दो कैटेगरी हम क्लासीफाई किया, नाइट्रेट्स, ऑर्गेनिक नाइट्राइट्स और नाइट्रेट को। नाइट्राइट्स में एमाइलोनाइट्राइट यूज होता है, बाकी नाइट्रोग्लिसरीन नाइट्रेट में, और दोनों शॉर्ट एक्टिंग है। और लॉन्ग एक्टिंग में क्या है, इरिथ्रोटाइल टेट्रानाइट्रेट, पेंटो इरिथ्रोटाइल टेट्रानाइट्रेट एंड आइसोसार्बाइड डाइनाइट्राइट। और एक्यूट में तो नाइट्रोग्लिसरीन यूज करते हैं, और लॉन्ग टर्म यूज में या कह सकते हैं रिकरिंग एंजाइना में लॉन्ग टर्म थेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग एक्टिंग ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, एंजाइना पेक्टोरिस के लिए। सो ये हमारा नाइट्रेट्स, ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स का हमने डिस्कशन किया। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेकंड क्लास, दैट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. So calcium channel blocker that we have discussed, the calcium channel blocker inhibit the calcium ion influx in the myocardial cells, and that's why what happen, the contractions of myocardial cell get reduced, and cardiac load, heart load get reduced. इसमें कैल्शियम इन्फ्लक्स क्योंकि कैल्शियम क्या करता है, माइकार्डियल सेल्स जो कि हार्ट का रिदम है उसको पंप करना, उसको कम करेगा, हार्ट कम पंप करेगा, क्योंकि हार्ट को ब्लड कम मिल रहा है, हार्ट को ब्लड कम मिल रहा है, हम कम काम करेगा, वो पंप भी कम, इसको ऑक्सीजन को ब्लड को कम ही पंप करे माइक जो, तो उसका क्या होगा, लोड कम हो पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जितना मिल रहा है उतना ही वो पंप करे। तो इसको जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इसके लिए देते हैं, जो कि क्या करता है, कैल्शियम आयंस का जो इन्फ्लक्स है माइकार्डियल सेल्स में, या कह सकते हैं माइकार्डियल मसल्स में, उसको ये कम करते हैं, और उसके जो हार्ट का जो आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट है, उसको रिड्यूस करते हैं। एग्जांपल्स ऑफ कैन से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, दैट इज nifedipine, that is you can say dihydropyridine derivative, dihydropyridine DPH, dihydropyridine कैसे DPH है, क्योंकि इसमें जो पायरिडीन है न्यूक्लियस होता है, आप जानते हैं पायरिडीन में ये नाइट्रोजन होता है, ये होता है, 2 डबल बॉन्ड्स 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं, उसमें एक डबल बॉन्ड जो है हाइड्रेटेड होता है, इसलिए डाइहाइड्रोपायरिडीन, और 2 डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रेटेड है, और डाइहाइड्रोपायरिडीन डेरिवेटिव है, यहाँ पे नाइट्रो जो है बेंजीन कह सकते हैं आप, नाइट्रोबेंजीन ग्रुप इस पे जुड़ा 4 पोजीशन पे, तो ये है आपका निफिडिपाइन, और निफिडिपाइन डाइहाइड्रोपायरिडीन डेरिवेटिव है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट डाइहाइड्रोपायरिडीन, निफिडिपाइन का हमने देखा स्ट्रक्चर, डाइहाइड्रोपायरिडीन निफिडिपाइन, ये देखिए डाइहाइड्रोपायरिडीन डेरिवेटिव, और ये एसिटाइल ग्रुप 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, सो 2 6 पोजीशन पे डाईमिथाइल ग्रुप, एंड 3 और 5 पोजीशन पे मिथाइल एसीटेट ग्रुप, मिथाइल एसीटेट, एंड 4 पोजीशन that is the 2 nitro benzene group, so that is the nifedipine, it's a dihydropyridine derivative. It is clear. Another category of I can say in category of calcium channel blocker, that is deltiazem. It's a benzene, you can say benzothiazepine derivative,
thiazepine derivative, benzothiazepine, this nucleus, because this the ये बेंजीन ग्रुप है, इसके साथ जो है नाइट सल्फर thiazepine, एजीपीन मीन्स 6 एजीपाइन 6 मेंबर रिंग, जो एजीपाइन जो है, एजीपाइन 7 मेंबर रिंग का जो है, एपाइन इपाइन लगता है 7 मेंबर रिंग के साथ, तो ये जो है 7 मेंबर रिंग जो है आपका इसके साथ जुड़ा हुआ है, 7 मेंबर रिंग, ये देखिए 7 मेंबर रिंग आपका इसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसको बोलते हैं एजीपाइन, बेंजोथायाजीपाइन, थाया फॉर सल्फर, एजो फॉर नाइट्रोजन, सो बेंजोथायाजीपाइन डेरिवेटिव इज डेल्टियाजियम। तो ये आपके कंपटीशन एग्जाम में और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है कि आपको रिमेंबर करना पड़ेगा कि जो निफिडिपाइन है दैट इज डाइहाइड्रोपाइरिडीन डेरिवेटिव एंड डेल्टियाजियम इज बेंजोथायाजीपिन डेरिवेटिव। और इस बेंजोथायाजीपिन डेरिवेटिव में अब देखिए यहाँ पे 3 मिथॉक्सी फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है एंड एसिटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एंड यहाँ पे डाई मिथाइल इथाइलएमीन ग्रुप। सो ये डिफरेंट सब्स्टिट्यूशंस हैं, बट इसमें डेल्टियाजियम में मेन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्केलेटन क्या है, दैट इज डाइहाइड्रो बेंजोथायाजीपिन डेरिवेटिव। जो थर्ड कैटेगरी हमने 2 देखा, नेफिडिपाइन जो कि डाइहाइड्रोपाइरिडीन डेरिवेटिव है, दूसरा हमने देखा आपका डेल्टियाजियम जो कि बेंजोथायाजीपिन डेरिवेटिव है, तीसरा हम देख रहे हैं वीरापामिल, थर्ड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इज वीरापामिल। वीरापामिल क्या है, लुक एट हियर द स्ट्रक्चर ऑफ वीरापामिल। वीरापामिल इज एल्काइल एमीन, मीन्स फिनाइल एल्काइल एमीन, फिनाइल एल्काइल एमीन, फिनाइल एल्काइल एमीन। फिनाइल ये अब देखिए फिनाइल ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिनाइल एल्काइल एमीन डेरिवेटिव। सो आप देखिए फिनाइल एल्काइल एमीन एमिनो ग्रुप्स के साथ एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं और एल्काइल ग्रुप के साथ क्या फिनाइल ग्रुप जुड़े हैं, डाइमिथॉक्सी फिनाइल ग्रुप। सो ये जो है क्या है, वीरापामिल। तो ये 3 कैटेगरीज जो हैं वो क्या है आपका, हम लोग डिस्कस किए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। फर्स्ट निफिडिपाइन डाइहाइड्रोपाइरिडीन डेरिवेटिव, डेल्टाजिम वो क्या है बेंजोथायाजीपिन डेरिवेटिव, एंड वीरापामिल जो कि क्या है आपका फिनाइल एल्काइल एमीन डेरिवेटिव। ये जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं वो कैल्शियम आयन के रिफ्लेक्स को रोकते हैं और उससे क्या होगा, मायोकार्डियल सेल्स का वर्क आउटपुट जो है कम होता है, वो बहुत जो ब्लड का जो पंपिंग है वो स्लोली करता है, जिससे कि हार्ट को ब्लड बॉडी को तो ब्लड कम सर्कुलेट होता है, बॉडी का ओवरऑल आउटपुट कम होता है, बट हार्ट का जो लोड है वो कम होता है, जिससे कि हार्ट को लोड बढ़ने से जो अटैक या पेन होता है वो ना हो, इसलिए ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दिए जाते हैं, ये इनका काम है। दिस इज द फंक्शन ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। नाउ वी आर डिस्कसिंग द थर्ड क्लास ऑफ द कैल्शियम चैनल, देयर इज एंटी एंजियल ड्रग दैट इज बीटा adrenergic blocking agents. We have discussed previously that beta adrenergic drug, beta adrenergic receptor, you can say adrenergic receptor, they are responsible for the constriction, beta adrenergic receptors, or you can say adrenergic drug, epinephrine, or you can say adrenaline, or you can say adrenaline or noradrenaline, they are responsible for constrictions into the blood vessels. So beta blockers, especially they block these adrenergic receptors and they dilate the blood vessels. So look at here, the use of beta adrenergic blocking agents is limited to the treatment of
treatment of exhaustion induced angina, means in case of common angina, that is what happen in due to the exercise what happen, this angina may induce, classical angina may induce, that can be treated by this. So the prototype drug of we can say beta blocker is the propranolol. Propranolol is the prototype drug of there is beta blockers, that we know that naphthalene, or you can say naphthol, there is this propranolol, this alpha naphthol that is present here, alpha naphthol derivative, the side chain derivative, and this amino group that is substituted by the isopropyl group. Isopropyl group substituted at amino groups, the secondary amine group is there, and secondary alcohol containing a alkyl group is there. So there is a different part of propranolol. तो प्रोपेनोलोल क्या है, एक आपका ये आपका नेफ्थोल होता है, अल्फा नेफ्थोल ऑक्सीजन यहाँ होता है 2 नंबर पे, तो बीटा नेफ्थोल होता, बट ये अल्फा नेफ्थोल का डेरिवेटिव है। अल्फा नेफ्थोल में क्या है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल और प्रोपाइलिन जो सब्स्टिट्यूशन हुआ, और वो जो है एमिनो ग्रुप, और एमिनो ग्रुप क्या है, सेकेंडरी एमीन, इसमें आइसोप्रोपाइल ग्रुप साइड चेन है। ये क्या है आपका प्रोपेनोलोल, जिससे प्रोटोटाइप ड्रग ऑफ यू कैन से बीटा ब्लॉकर्स। तो ये प्रोटोटाइप ड्रग, व्हाट इज द प्रोटोटाइप ड्रग, वो ड्रग जो कि उस क्लास की रिप्रेजेंट करें, उस क्लास के जो भी सभी ड्रग्स की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करें, दैट इज द प्रोटोटाइप ड्रग। सो द लास्ट वी आर डिस्कसिंग last category, that is the miscellaneous coronary vasodilators. Miscellaneous coronary vasodilators means in treatment of myocardial insufficiency or myocardial infarctions or ischemic heart disease, we can use coronary dilators or vasodilators. Vasodilators just like papaverine that is obtained from Papaver somniferum opium, as well as dipyrimidol and cyclin delete, papaverine and dipyrimidol. They are vasodilators. They can dilate the vessels, blood vessels. So they may be used here in the treatment of ischemic heart disease. Look at here next. Dipyrimidol causes its long acting as well as and selective coronary vasodilation, presuming through inhibitions of adenosine uptake by the red blood cells and vesicultures. And adenosine is a natural vasodilator substance released by the myocardial during the hypoxial episodes, and the inhibition of these adenosine uptake is therefore believed to prolong its vasodilator effect. देखिए डाइपायरामिडोल का मैकेनिज्म एक्शन क्या है। डाइपायरामिडोल एक्चुअली इनहिबिट किसी एंटागोनिस्ट है किसी का एडिनोसिन एंटागोनिस्ट। आप इतना सा इसको समझें, एंटागोनिस्ट, एडिनोसिन एंटागोनिस्ट। एडिनोसिन क्या है, एक कॉन्स्ट्रिक्टर, एक वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर प्रोड्यूस करने वाला एक क्या कहते हैं इंटरमीडिएट है, जो कि ब्लड वेसल्स के से जो है ये ब्लड वेसल्स को अपटेक करता है, और ये क्या करता है, एडिनोसिन जो है वो जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो ये डाइपायरामिडोल क्या करता है, इस एडिनोसिन को ब्लॉक करता है, इसका इनहिबिशन करता है, और इसका इनहिबिशन करने से क्या है, वेसोडाइलेशन एक्शन प्रोड्यूस होगा। सो यू हैव टू रिमेंबर अबाउट डाइपायरामिडोल इज ए आई कैन से बेसिकली एडिनोसिन एंटागोनिस्ट and it is used as a vasodilator
So this is the structure for, you can say, dipyramidol. Dipyramidol, this is pteridine nucleus. टेरिडीन न्यूक्लियस हमने पहले भी डिस्कस किया, किसमें, मेट्रानिडोज टेरिडीन न्यूक्लियस किसमें है, आपका मिथोट्रिक्सेट में है। मिथोट्रिक्सेट एंटी कैंसर ड्रग है, वहाँ पे टेरिडीन न्यूक्लियस था, और ये टेरिडीन न्यूक्लियस डेरिवेटिव है डायपायरामिडोल, एंड इसमें दो अमीनो ग्रुप हैं और इथाइल इथेनॉल ग्रुप्स, डाई इथेनॉल ग्रुप्स से डाई इथाइल अल्कोहल ग्रुप्स जो है वो सब्स्टिट्यूटेड है इसके ऊपर, और डाइहाइड्रोपाइरिडीन न्यूक्लियस जैसे पाइप्रिडीन न्यूक्लियस जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो ये आपका डाइपायरामिडोल ड्रग है, और ये क्या कहती है, वेसोडाइलेशन बाय इनहिबिशन ऑफ अपटेक ऑफ adenosine by the RBCs, or you can say that is responsible for the blood vessels constrictions. So it get reduced, dihydropyrimidine get relaxed. Look at the other papaverine. Papaverine obtained is alkaloid obtained by Papaver somniferum is isoquinoline derivative. Isoquinoline ring, isoquinoline derivative, and isoquinoline there is the position of 1, 2, 3. Position of 1 there is dimethoxy, you can say ortho dimethoxy, benzene, you can say phenyl or benzyl group, you can say that is substituted here, and methoxy groups and two methoxy group on the benzene. So this is a papaverine, and this obtained Papaver somniferum. It is also act as a vasodilator. And lastly, that is cyclin-delete. Cyclin-delete, it's a you can say ketonic groups, and that is obtained that is joined with the ether linkage, the cyclic groups, cyclohexane group is attached here, benzene is there, and alcoholic group in this one. So this is the cyclin-delete compound. So that is all. This is the cyclin-delete, that is vasodilators. So that we have discussed here. आज हमने अभी यहाँ डिस्कस किया कि जो मिसलेनियस वेसोडाइलेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं। आपका साइक्लिन-delete है, दूसरा हमने देखा दैट इज पेपावरिन जो कि पेपावरम सोमनीफेरम से मिलता है, और ये किसका डेरिवेटिव है, आइसोक्विनोलिन रिंग का डेरिवेटिव है, और ये भी क्या करता है, वेसोडाइलेशन करता है। और इम्पोर्टेंट क्या है, डाइपायरामिडोल जो टेरिडीन न्यूक्लियस इसके अंदर होता है, और ये क्या करता है, एडिनोसिन एंटागोनिस्ट है, एडिनोसिन रीअपटेक को इनहिबिट करता है, अपटेक को इनहिबिट करता है, और वेसोडाइलेशन ये प्रोड्यूस करता है। तो ये हमने देखे आपके क्लासिफिकेशंस में। एक बार मैं फ्रीली शॉर्ट में इसको एक बार फ्रीली डिवाइज करूं, चार हमने एंजाइना पेक्टोरिस के लिए 4 ड्रग को हमने क्लासीफाई किया 4 ग्रुप कैटेगरी में। पहला आपका पहली क्लास ऑर्गेनिक नाइट्रेट और नाइट्राइट्स और नाइट्रेट, जिसमें हमने देखा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है एमाइल नाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन। लॉन्ग एक्टिंग में है हमारा इथ्रिटाइल टेट्रानाइट्रेट, पेंटाइथ्रिटाइल टेट्रानाइट्रेट, आइसोसार्बाइड, डाइनाइट्राइट। और इनको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में या रिकरिंग एंजाइना में इनको यूज़ करते हैं। शॉर्ट टर्म पे एंजाइना होता है तो सबलिंगुअली जो है नाइट्रोग्लिसरीन यूज करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स 3 कैटेगरी बीटा ब्लॉकर से क्या करते हैं, सॉरी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं, कैल्शियम आयन चैनल को ब्लॉक करते हैं। और इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कौन कौन से हैं, 3 कैटेगरी हमने देखी। एक नीफिडिपाइन जो डाइहाइड्रोपायरिमिडीन डेरिवेटिव है, दूसरा क्या देखा हमने, डेल्टियाजिम जो कि थायोडाइजिपिन डेरिवेटिव है, और चौथा हमने देखा दैट इज फिनाइल एल्काइल अमीन डेरिवेटिव जो कि क्या है, वीरापामिल। ये तीनों जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करते हैं, ये माइकार्डियल सेल्स में होते हैं, उसका कॉन्ट्रैक्शन को रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे तो माइकार्डियल सेल्स इनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी तो हार्ट को जो है हार्ट ज़्यादा पंप नहीं करेगा, ज़्यादा काम नहीं करेगा तो कम ऑक्सीजन जो इसको मिलेगा
क्यों एंजाइना पेक्टोरिस से क्या हो रहा है, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो रहा है, ऑक्सीजन कम मिल रहा है, ब्लड कम मिल रहा है, तो उसी से काम चल जाएगा, तो हार्ट पे जो है लोड कम पड़ेगा। ये इसका थ्योरी है, आपको समझ में आया होगा। तीसरा जो बीटा ब्लॉकर्स हैं, बीटा एनर्जी ग्रुप ब्लॉकर्स, बीटा एनर्जी ब्लॉकर्स हमने देखा कि प्रोपेनोल प्रोटोटाइप ड्रग है, और इसका ये क्या करते हैं, एनर्जिक रिसेप्टर्स, एनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन काम करते हैं, और बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, इनको ब्लॉक कर देंगे, तो ये क्या करें, कोरोनरी आर्टरी जो है वो ब्लॉकेज कम करेगी, और ब्लड वेसल जो ब्लड प्रेशर कम होगा, और ये इजीली फ्लो कर पाएंगे। लास्ट मिसलिनियस कोरोनरी डायलेटर्स, कुछ कोरोनरी डायलेटर्स हैं जो डायरेक्टली कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करते हैं, जैसे पेपावरिन, डाइपायरामिडोल एंड साइक्लिन डिलीट। डाइपायरामिडोल का एक स्पेशल एग्जाम्पल हमने देखा कि कैसे काम करता है ये, कि एडिनोसिन जो नेचुरल वेसोडायलेटर है, तो इसको ये क्या कहते हैं, एक तरह का सब्सटेंस है जो कि माइकार्डियल टाइप जो रिलीज होता है, तो ये एडिनोसिन को एनहेंस करता है, जो कि जो रेड ब्लड सेल्स इसको रिएप्टेक करती हैं। लुक एट हियर, आप देखिए एडिनोसिन जो है नेचुरल वेसोडायलेटर्स है, डायलेटरी है, और ये एडिनोसिन को इंक्रीज करती है। कहाँ पे, मैंने अभी थोड़ा किया डायलेटर एंटागोनिस्ट कर दिया, नो इस एगोनिस्ट, एडिनोसिन एगोनिस्ट डाइपायरामिडोल, जो कि इस अपटेक रीअपटेक को इनिबिट करता है। एडिनोसिन रीअपटेक को इनिबिट करता है, इनिबिशंस ऑफ रीअपटेक कौन, जो एडिनोसिन को क्या है, आरबीसी जो है आपके ब्लड वेसल्स में वो रीअपटेक कर लेती हैं, उसको ये इनिबिट करता है। हमने थोड़ा मिस्टेक किया, प्लीज़ आप इसको करेक्ट करें, कि यहाँ पे हमने एडिनोसिन एंटागोनिस्ट हमने बोला, इज नॉट एंटागोनिस्ट, इट इज in antagonized to the reuptake of the adenosine, not antagonist. You can say adenosine antagonist. Adenosine is the natural the vasodilator, but they inhibit, they antagonize to the reuptake of adenosine. रीअपटेक कौन करता है, एडिनोसिन का रीअपटेक करता है आपका रेड ब्लड सेल आरबीसी, तो उसको इनिबिट करते हैं, जिससे कि एडिनोसिन वहाँ बना रहेगा और वो क्या करेगा, वेसोडाइलेशन करेगा। तो इसके मैकेनिज्म के साथ आप देखिए, ये एडिनोसिन रीअपटेक को इनिबिट करता है, जो कि इंपॉर्टेंट इसका मैकेनिज्म है डाइपायरामिडोल का, जो कि एक टेरिडीन डेरिवेटिव है डाइपायरामिडोल, और ये वेसोडाइलेटर है। पेपावरिन हमने पेपावरिन 70% मिलता है, आइसोकेनोलिन डेरिवेटिव होता है। और तीसरा हमने देखा साइक्लिन डिलीट, ये साइक्लिन डिलीट भी क्या करता है, वेसोडाइलेशन करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, you get all the points are get clear. I am trying to explain you in very good manner and very deeply, and if any problem, any query, then you can ask me. And today we have completed about all detailed chemistry about the, and you can say anti-angina drugs. That's all. So now that's all for today. So thank you very much. Thank you for today.